Good day, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. Fab Talks is so happy to connect with several individuals across India and the world as well. We have our guests joining us from different parts of India and the world. They have shared their journey with us. They have enabled us to understand the real meaning of life, the struggles of life, the struggle of the commoner, the struggles of professionals, and the success of the commoners and the success of the professionals as well. So International Fab Talks is a global platform for people from all walks of life. All of you are welcome to share your journey on the International Fab Talks. It's a pleasure and an honor to have you share your journey with us and to enable the world to understand what it really takes to make it in this world, to make it a success in this world, or, to face all the difficult ups and downs that we face. So, dear friends, without much wasting of your time, I'd like to share the name of our guest. I'm sure you'll be waiting to know who our guest is today. So today I take the privilege and the honor to share the name of our guest. He's here with us. He's none other than a young person. He's joining us all the way from the lovely place called as Jammu and Kashmir. He's a person connected with acting, modeling, and of course, he's connected with social work as well. We'll get to know what it is. And finally, I would like to reveal his name. He is none other than Mr. Divyansh Baba. He's an actor, a model, and of course, he's the head and in charge of Bitia Foundation. We'll get to know more about his journey today. What has made him who he is today? Why did he choose acting? Why did he choose to become a person connected with Bitia Foundation? What are the struggles and challenges he has faced? And how one could learn from this young man to become brave, resilient in the face of all struggles. Join us to welcome our celebrity guest. He's none other than Mr. Divyansh Baba, an actor, a model, and of course, the head and in charge of Bitia Foundation. Namaste, Bhai Sahab, and welcome to the session. सबसे पहले नमस्ते। जय बाबा सिद्ध गुरुनाथ जी, जय माता दी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा नाम दिव्यांश बाबा है। आपका सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ आपकी सारी टीम का। स्पेशली थैंक्स राजेंद्र शर्मा जी का। थैंक यू सो मच भैया, यू आर सो हॉनेस्ट एंड सो हम्बल। आप में एक अच्छा गुण है, सीधा साधा इंसान है आप, और सच्चे दिल से काम करने का इरादा रखते हैं, सच्चे दिल से लोगों से मिलना, बातचीत करना और अपना कर्तव्य निभाना, वो जी अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं आज तक। दैट्स रियली वेरी नाइस। भैया, जी। अभी हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे, आप अपने आप को कैसे वर्णन करेंगे? मैंने आपके बारे में, आप एक एक्टर है, आप एक मॉडल है, आप बिटिया फाउंडेशन के हेड और इंचार्ज है, ये सब मैंने शेयर किया है, लेकिन लोग जो है जानना चाहेंगे आपसे, आप अपने जी आप को किस तरह वर्णन कर पाएंगे आज ऑन द इंटरनेशनल फैक्ट टॉक्स? जी जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और बेसिकली आई एम फ्रॉम JNK। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ सबका कि मेरा नाम दिव्यांश बाबा। तो मतलब कि बेटे फाउंडेशन में हमारा ये रहता है कि हम लड़कियों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मतलब कि हमारी टीम भी अच्छा काम कर रही है और मैं एक मॉडल और एक्टर हूँ। और बचपन में जो मेरी स्टार्टिंग में मेरे को छोटे छोटे एक्ट करने का बड़ा ही शौक था। जो जिस लाइन में मैं आया, जो मेरे जनाब गुरु जी थे, अक्षय सागर जी थे, मैं उनकी बदौलत हूँ। और आप सबकी सपोर्ट है मेरे साथ। दैट्स रियली नाइस। भैया, अभी हम ये जानना चाहेंगे, आप मॉडलिंग और एक्टिंग कब स्टार्ट करें? जब बचपन में ही स्टार्ट करें, या ये शौक कब आप में जागृत हुआ? दूसरे मॉडल्स और एक्टर्स को देख के क्या वो एक्टिंग का इच्छा आप में स्टार्ट हुआ, या स्कूल में छोटा सा प्लेस नाटक जैसा होती है तो आप उसमें भाग लिए? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कहाँ से ये रास्ता या ये करियर आपका कहाँ कब शुरू हुआ? मतलब कि मेरे सबसे पहले जो मेरी शुरुआत थी वो नशा है बुरा से हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं जो भी काम करता हूँ मैं सोशल मीडिया पे इसलिए करता हूँ कि आजकल आप देख रहे हैं कि नशा कितना फैल रहा है। जी मैं जी। मैं एक मैसेज देने के लिए मैंने वो सॉन्ग निकाला था। ताकि हाँ, उस टाइम तो आपको पता है कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे और छोटे छोटे एक्ट्स करते थे। तो कहीं पे एक जगह पे हम गए थे, वहां पे डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दी थी। वो डायरेक्टर हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिनका नाम था डायरेक्टर श्री अवतार सिंह जी, स्वर्गीय श्री अवतार सिंह जी। लेकिन आज उनको भी हम बड़ा मिस करते हैं क्योंकि उन्होंने जो स्क्रिप्ट दी थी, रोल रोल आपको पता है कि मैम कोई भी हो, रोल के लिए मेरे को सबसे पहले सिगरेट का रोल दिया गया था। क्योंकि वो रोल इतना बखूबी से मैंने निभाया अपना कि सबने मेरे को उसमें लाइक किया। क्योंकि मैंने कभी आज दिन तक नशा नहीं किया है, ना कभी मैं इसमें आया हूँ, सिर्फ एक मैसेज दिया था। और कुछ लोगों के इतने तो मेरे को मैसेज आते थे कि कुछ भाइयों को मैंने बचाया नशे से। और ये मुनीम चलाई हमने कि ये नशा बंद होना चाहिए। और मतलब कि मैं बता दूं कि जब वो मैंने सॉन्ग किया नशा है बुरा,
तो उसमें जो हमारे सिंगर अनिल पंजाबी जी थे, उन्होंने बहुत ही प्यारा अपना गाया था। और एक्ट जो किया था वो दिव्यांश बाबा की और सारी उसकी मेरी प्रोडक्शन ने किया था, टीम ने किया था। और मतलब कि बड़ा ही प्यार मिला मुझे सबसे। थैंक यू सो मच। जी भैया, अभी हमको ये अच्छा लगा आपसे सुन के कि आप ये धूम्रपान या नशा या सिगरेट में या ड्रग्स में रुचि नहीं रखते हैं। बहुत सारे जी बच्चे आपकी उम्र के जो लोग हैं, यूथ है, ज्यादा से ज्यादा इसमें फंस चुके हैं। तो आप जी यहाँ पर अच्छा मैसेज स्टार्टिंग में शेयर किया कि आप इसके खिलाफ हैं और आप दूसरे लोगों का भी मदद कर चुके हैं इससे बाहर निकलने का। तो ये बहुत बढ़िया मैसेज है, दैट्स रियली एक्सीलेंट। अभी हम जी। ये जानना चाहेंगे आप बिटिया फाउंडेशन से कैसे जुड़े हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ है, किस तरह के सोशल सर्विस है, इसका मतलब क्या है बिटिया फाउंडेशन? ओवर टू। यह फाउंडेशन देखो जी, जैसे मोदी जी ने बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वैसे ही हमारी जो बेटिया फाउंडेशन की हमारी अध्यक्षता थी, हमारी जो माता जी हैं श्री ज्योत्सना जैन जी, उन्होंने मेरे पे बहुत ही ज्यादा भरोसा जताया। प्रांजल जैन जी जो हमारे एमडी हैं LON न्यूज के और बेटिया फाउंडेशन के, उन्होंने मेरे पे, बहुत ही सारी टीम ने भरोसा जताया कि दिव्यांश आप प्लीज हमारे इस परिवार में शामिल हो। और मैंने भी अपनी जितनी मेरे से हुई मैंने बखूबी से अपना कार्य किया। और काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट भी रही। कुछ लोगों ने बेटिया फाउंडेशन की टीम में थे, जैसे अशोक जी थे, हंस जी थे, काफी ज्यादा मतलब कि लोग थे यहाँ पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी रखा, प्यार मोहब्बत दिया सबने। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने सबको एक समाज देखा और सबको मैंने अपने साथ रखा और उनसे मुझे सीखने को भी बहुत ही कुछ मिला। तो मैं आज ये भी कर रहा हूँ। और हमने अभी बेटिया फाउंडेशन में कम से कम भी, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूँ, तो 500 लड़कियों की हमने 500 लड़कियों की हमने शादी मतलब कि अच्छे तरीके से करवाई है, धूमधाम से करवाई है। और बेटियों का हमेशा यही मैसेज रहता है कि उनकी स्कूल की शिक्षा जो है वो भी बेटिया फाउंडेशन हमारी कर रही है और बड़े अच्छे कार्य कर रही है। और नशे पे भी हम जल्दी ही एक रैली भी निकालने जा रहे हैं। तो बस मेरा मोटो ये है कि नशा खत्म होना चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। अभी आपने कहा बिटिया फाउंडेशन में आप काम करते हैं, आपको आपको बहुत सारी जिम्मेदारी दे चुके हैं, आप बड़े खुशी से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये तो हमको समझ में आया है। और आपने कहा अभी 500 लड़कियों का शादी भी करवाए, बड़े जी धूमधाम से करवाए। अभी हम ये पूछना चाहेंगे दिव्यांश बाबा आपसे, अगर जी जो लड़कियां जिनका शादी हो चुकी है, अगर शादी के बाद में उनका कोई प्रॉब्लम हुआ वहां पर ससुराल में या कुछ भी ऐसा, शादी के बाद में जो प्रॉब्लम्स होती है, फिर उन लोग कभी लौट के आए आपके पास, जो मुश्किलों जब फेस करते हैं वहां पर उनके ससुराल में, मुश्किल फेस करने के बाद में वो फिर लौट के आते हैं आपके पास, क्या तभी उन लोगों को कुछ ऐसा स्किल सिखाते हैं या अपने आमदनी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना? जो क्योंकि हमारे जो नया नया पीढ़ी जो है, पहला वो इंडिपेंडेंट रहना, कमाई पहले जी करना, फिर उसके बाद शादी करना। तो शादी इज नॉट एवरीथिंग, थोड़े लोग बोलते हैं ऐसा, बड़े लोग ऑफकोर्स शादी के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में पहले हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसके बारे में ये संस्था कुछ कर रही है उन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का? जी। देखिए, आत्मनिर्भर, ये बात जो कहना है, आत्मनिर्भर। जी जी जी, मैं आपको ये बात बता दूं कि कार्य तो कर रहे हैं। कुछ ऐसे बीच में आते हैं, कुछ केसेस आते हैं, लेकिन वो हम्म। हमारे समझा देते हैं। जो हमारे ज्योत्सना जैन मैम हैं, वो हमसे सीनियर हैं, वो सारा मतलब हैंडल कर लेती हैं। और बहुत अच्छे तरीके से वो घर, बेटिया फाउंडेशन का ये है कि किसी का घर बचाना होता है, घर जी जी तोड़वाना नहीं होता है। क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी का नारा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारा काम यही है कि बेटियों के प्रति की बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हमें भी बड़ी खुशी मिलती है। हमारे जो एमडी हैं प्रांजल जैन जी, वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कुछ केसेस आते हैं, ऐसा नहीं है, कि मेरे पास भी काफी केसेस आए थे, तो मैं उनको भी देखता हूँ। कि कभी किसी की शादी में, सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि हमारा एक ही मोटो रहता है कि घर बचाना, लोगों के घर उजाड़ने नहीं। चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो ऑफिशियल कोई हो, चाहे वो एक ट्रक ड्राइवर क्यों ना हो, चाहे वो कोई एक वेटर क्यों ना हो, चाहे वो रिच क्यों ना हो। क्योंकि घर बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर वाला घर बनाएगा बनाएगा। किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहिए। और अभी मेरी कोशिश ये रह रही है मैम, आप देख रहे हैं कि दहेज प्रथा जो चल रही है, ये दहेज वगैरह जो है, ये रीति खत्म हो जानी चाहिए। कि कुछ लोग ऐसे शादी के लिए आते हैं, कईयों के पास बारात के लिए पैसे नहीं होते हैं, कईयों के पास कुछ ऐसा रहता है, तो बड़ा ही मतलब कि देख के उस टाइम आंसू आते हैं आंखों में। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
तो मैं तो इस मुहिम को ये भी कर रहा हूँ कि चलो दहेज जो भी है अब, आप देख रहे हैं कि कुछ गरीब फैमिली से आते हैं, कईयों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, फिर भी लड़के वाले डिमांड क्या करते हैं कि भाई हमें गाड़ी दे दो। ये चीज नहीं होनी चाहिए, लालच बुरी बला है। इस चीज को मैं आपको ये बात बता दूं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा आपने शेयर किया है। घर को उजाड़ना नहीं, घर को बचाना है। जितना हो सके घर को जुटा एक करना है, उनको तोड़ना नहीं देना या दूर नहीं होना है। समझौता कर लेना है, कहीं किसी अच्छी तरीके से बैठ के उसको समझौता करना है। ये मुझे अच्छा लगा है। चाहे वो कौन सी भी परिस्थिति हो, उनका मैक्सिमम ट्राई करते हैं आप लोग उनको जुटाने में, टू जॉइन एंड टू स्टे टुगेदर। दैट्स रियली नाइस। और आप, यस भैया। दिव्यांश के लिए सभी इक्वल हैं, क्या वो अमीर हों, क्या वो गरीब हों, क्या वो हों, परिवार एक परिवार, परिवार बढ़ना बढ़ना चाहिए आगे, परिवार को खत्म नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आपने ये गाना भी सुना होगा कि जैसे हमारे कंठ क्लेयर साहब जी ने गाया था, आई एम नॉट सिंगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कहते, तू ही मेरा पुत वे, तू ही मेरी तीनी, लग जाए उम्र मेरी जुग जुग जीनी, कॉलेज च दाखला वेलै जुतिये रानिए, कॉलेज च दाखला वेलै जुतिये रानिए, तो बचन दहाई, जी सदके पावे तू कर ले पढ़ाइयां, मेरी पग नु दाग ना लाई। हमेशा मैम ये एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि तू ही मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की है। तो मैं तेरे को उसी में देख रहा हूँ, लड़का भी तू है तो लड़की भी तू है। मगर मेरी जो कहते हैं ना कि टर्बन, जैसे कि टर्बन को दाग ना लगना चाहिए, पंजाबी में ये कहा जाता है कि मेरी पग को दाग ना लाई, मतलब कि पग पे कीचड़ ना उछालना। बस उसकी एक मतलब कि मैं आपको ये कह दूं कि जैसे कि पग पे दाग ना लाई, मतलब कि पग कभी उछालना नहीं चाहिए, मतलब कि नीमा होके ही रहना चाहिए। और आपको एक बात ये बता देता हूँ, एक शायरी आपके लिए अर्ज करने लगा हूँ। कहते हैं, इतने मोड़ नहीं, इतने मोड़ नहीं जम्मू शहर की गलियों में, इतने मोड़ नहीं जम्मू शहर की गलियों में, जितने तुम्हारे इन बालों में है, इतना नूर तो चांद में नहीं मैम, जितना तुम्हारी इन प्यारी प्यारी सी गालों में है। जी जी जी, दैट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट दिव्यांश बाबा, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये राज जानना जरूरी समझा। आई नो, आई वांट टू नो दिस। ये राज जानना चाहती हूँ मैं। ये राज जी। जानना चाहती हूँ मैं आपसे। इतनी कम उम्र में आपको इतने बड़े मेच्योरिटी कहाँ से मिला आपको? इतने इतने बड़े सोच, ये तो 40-50 के उम्र में ही आते हैं ज्यादा से, हम लोग देखे हैं। तो वो 20-30 के उम्र में जो लोग ये उतना डीप नहीं सोचते हैं। तो आपको इतना ग्रेविटी से, इतना अंदर डेप्थ में जिंदगी को समझने में आपको जी कब ऐसा लगा कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, ना ही इस रास्ते पे चलना है? मैम, इसके लिए भी मैं आपको कहूंगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे वो मेरा। दिव्यांश बाबा का कुछ नहीं है मैम, ये सांस भी किराए पे है, कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है, कि दम दा भरोसा दम आवे ना आवे। तो एक बात ये बता दूं कि ये सबसे बड़ी बात मेरे माता पिता की है, जिनका नाम श्री कुलदीप कुमार मेरे पिताजी हैं, माता जी का नाम श्री रीता देवी है। ये उन्हीं के संस्कार हैं, क्योंकि हमें एक अच्छे हिंदू, मैं सनातन धर्म को भी बड़ा मानता हूँ, तो मैं सनातनी भी हूँ। तो ये उन्हीं की कृपा है, और मेरे बाबा जी सिद्ध गौरिया नाथ जी जिनकी वजह से हूँ मैं, माता मल जी की कृपा से हूँ। तो और मेरे जय साहब सुधीर कुमार खजूरिया जी हैं, उनकी बड़ी मुझे सपोर्ट रहती है मैम, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीजें गॉड गिफ्टेड नहीं है मेरे पास। मैंने आपको एक ही शब्द में बता दिया, मेरा कुछ नहीं है, मैं खुद यहाँ पे किराए पे हूँ। ये अच्छी बात है। ये आज हमने सीखा आपसे कि हम सब यहाँ पर किराए पर रहते हैं। ये साज भी हमारी नहीं है, वो ऊपर वाले का देन है। दैट इज रियली वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच दिव्यांश बाबा। अभी हम ये जानना चाहेंगे, आप एक्टिंग में कैसे उतरे? आप बहुत सारे फिल्म्स कर चुके हैं, बहुत सारे महान हस्तियों से आप अवार्ड जीत चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमें। मैंने जब पहला किया था, आपको बता देता हूँ, डुग्गर एजेंसी अवार्ड हुआ था अभी 2024 में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2022 में ये मेरा प्राइज है, आप देख सकते हैं। ये अमीषा पटेल जी से मिला हुआ है, ये आप अमीषा पटेल जी देख सकते हैं, गदर मूवी की यूजी अवार्ड्स के नाम से ये हुआ था इवेंट, और बेटे फाउंडेशन का भी मेरे को प्राइज मिला है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे को मिला था, ये कड़ा इवेंट्स का, मैं कंपनी का डीन था तब का मेरा ये है। और काफी ज्यादा प्राइज मेरे को मिल चुके हैं अभी तक, क्योंकि ये मेरी मेहनत है, आप सबका प्यार है, मेरा कुछ नहीं है।
जी जी जी, दैट्स रियली नाइस, एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दोस अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स दैट यू हैव वन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अभी हम ये जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। आपका बचपन कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर में ही आपने वक्त बिताया? आपका स्कूलिंग कहाँ पर हुआ था? इसके बारे मैम मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा बर्थ था वो जम्मू कश्मीर का ही था। मैं एक जलाके मोहल्ला नाम था, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। स्कूलिंग मेरी जो थी वो, सबसे पहले तो मैं विद्या ज्योति मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में आया था। फिर उसके बाद मैंने आगे जो 10th का अपना पास आउट था वो मेरा अपना हेवन किंगडम स्कूल से था। तो फिर मैं आगे तक चलता रहा और एक्टिंग के क्षेत्र में मैं काफ़ी ज़्यादा नाम करता रहा, क्योंकि आप लोग ही थे जो मुझे सपोर्ट रखते थे। आप हो गए मेरी मीडिया। आपको पता है कि मीडिया ही जो होती है जो हमारी आवाज को आगे तक लेके आती है, नहीं तो कलाकार कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, कहते हैं कि सोच रखोगे डायमंड की तो गोल्ड तक आप जरूर पहुंचोगे। अगर रखोगे आप लोहे की, वो लोहा पिघल के तो वो फिर चूरो चूरो हो जाता है और तबाह हो जाता है। इसलिए मैंने सोच रखी हाई थिंकिंग और बी पॉजिटिव। बस यही चीज मैंने सीखी है। में, दैट्स रियली नाइस। दिव्यांश, हम आपके बारे में आपके बचपन में ही अभी थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको याद है जो एवरग्रीन है मन में, ये हुआ था स्कूल में या घर में हुआ? एक अच्छा सा इंसिडेंट या कोई नटखट इंसिडेंट। आप किस तरह के बच्चे थे, नटखट थे या बहुत शांत स्वभाव के थे? काफी हुए थे। एक बार मुझे साइकिलिंग का बड़ा शौक था कि तो मैं साइकिलिंग कर रहा था। तो उस टाइम मैं जब मूवी देखता था, धूम मूवी आई होती थी, तो मैं जैसे देखता था कि मैं ऐसे जाऊंगा, जैसे धूम में स्टंटबाजी करता था, क्योंकि मुझे स्टंट का भी बड़ा शौक था साइकिलिंग में। तो हाइट भी कम छोटी थी, तो फिर मैंने कहा मैं साइकिलिंग चलाऊंगा। मैंने अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझा और हमेशा मैं आगे ऊंची ऊंची उड़ानों में चलता रहा। और बड़े बड़े, कहते हैं ना कि अगर आपने लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर से मैं फर्स्ट टाइम, जब मैं छोटा था तब मैं पहली बारी जो मेरा अवार्ड था दिल्ली में, मुझे बुलाया था प्रांजल जैन जी ने। मुझे तब कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे दिल्ली का डी भी नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊंगा। लेकिन मेरी मंजिल, मेरी मेहनत, आप सबकी सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, ये मुझे यहाँ तक आज इतनी तक मुझे आके आई हैं। मैं इसका मतलब कि आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है इसके लिए बोलने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। सभी लोग बोलते थे यार ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, आज ये टाइम वेस्ट कर रहा है मैम। लेकिन मैंने पैसे की तरफ नहीं देखा, मैंने हमेशा अपना नाम बनाने की तरफ देखा। और अगर आज मैं पैसे की तरफ देखता तो आज मैं बहुत दूर तक होता। लेकिन फिर भी आज मैं वही इंसान हूँ। कोई मुझे बोलेगा कि चाय वाले ठेले पे भी चाय पीनी होगी, मैं वहां पे भी पीऊंगा, और रेस्टोरेंट में भी पीनी होगी, मैं वहां पे भी पीऊंगा। तो आपको ये बात भी बता देता हूँ कि हमने हमेशा नीमा होके ही खाना सीखा है। जितना इंसान झुक के रहता है उतना ही वो दूर तक जाता है, और जितना अकड़ के रहता है वो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना मुर्दे की पहचान है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ मैं। जी जी, वेरी नाइस, दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत हाँ अच्छी जी। बातें सुनाई आपने, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, दैट्स रियली ग्रेट। भैया, अभी हम ये जानना चाहेंगे आपके टीचर्स के असर आप पर कैसा था? किस तरह के टीचर्स थे आपके, जो शिक्षक थे या अध्यापक? किस तरह के अध्यापक थे? वर दे गुड टू यू? आपसे अच्छा बात करते थे, अच्छा सिखाते, या ऐसा रफ एंड टफ आपके साथ कभी कुछ हुआ? क्योंकि आजकल कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपका साथ कैसा व्यवहार होता था तब? नहीं, टीचर्स सब, गुरु जो होता है, गुरु अच्छा ही अपने जो शिक्षा शिक्षा देते हैं, गुरु बहुत ही प्यारी शिक्षा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को उसका अमल करना चाहिए। हम नटखट होते थे पढ़ने में, हम कभी मतलब कि मेरा मन बड़ा कम रहता था, क्योंकि मेरा टारगेट ही एक इसी टाइप। मैं रात को भी सोता था कभी कभी तो मेरे को यही होता था कि यार मैं ये एक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस मूवी में करना चाहता हूँ। फिर मुझे पंजाब से मैम कुछ ऑफर्स आए, जो कि मेरा पहला गाना आया था जस्ट रिकॉर्ड से, बहुत बड़ा ब्रांड था ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का। तो वहां पे मैंने ये काम किया था। फिर उसके बाद मैंने कंपनी मूवी की थी सुरेंद्र जी के साथ। फिर इसके बाद मैंने फरियाद कर दी ए बी किंग जी के साथ किया है सॉन्ग। और जम्मू में भी काफी ज्यादा मैंने सॉन्ग्स किए हुए हैं। सनी लखोत्रा जी के साथ किए हैं, सोनू तनेजा जी के साथ किए हैं, सारी टीम के साथ बहुत ही मतलब कि अच्छा, राहुल जम्वाल, मतलब कि हमारे बहुत ही मतलब कि मेरी टीम जो थी, बहुत मजा आता था काम करने का मुझे। ऐसा नहीं है। बाकी मेरे डीओपी थे अरमान, अशोक जसरोटिया।
ए फोटो प्रोडक्शन फोटो वाले, केवी म्यूजिक, ऑन द बीट, मतलब सारे मैंने धाकड़, अपनी टीम, मेरी टीम बहुत ही अच्छी स्ट्रांग थी। वो टीम जो थी वो मेरी एक, मतलब कि कह सकते हैं कि मेरा परिवार था। वो वी आर फैमिली। वो आज वो टीम बहुत ही दूर तक पहुंच चुकी है, और दिव्यांश भी उन्हीं के साथ साथ चल रहा है। और मैंने एक ही बात बोली, जब तक ये सांसें चलेंगी दिव्यांश बाबा तब भी आपके साथ खड़ा है। हाउ नाइस, दैट्स रियली वेरी नाइस। जी अभी दिव्यांश, बहुत सारे बच्चे जो है, जी युवा पीढ़ी जो है, उन लोग ये अपना फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहेंगे, वो भी मूवीज में आना है, एक्टिंग में आना है बोल के बहुत आशा रहती है उन लोगों को। तो जी। उनके लिए किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? क्या उन लोग ये रास्ते पे आना है या नहीं आना है? अगर आए तो किस किस तरह की देखो, मुश्किल सामना करना पड़ेगा? दिव्यांश जो भी बात करता है सच बात करता है। क्यों करता है आपको सभी मैं बता देता हूँ। बच्चों में टैलेंट बड़ा है, कूट कूट के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन बच्चे फाइनेंशियली स्पोर्ट से आगे तक नहीं जाते हैं। अब जिसके पास टैलेंट होता है उसका टैलेंट डायरेक्टर को भी देखना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी देखना चाहिए। पैसे से सब कुछ नहीं आता है, कला भी कोई चीज है। उस कला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस कलाकारों को, मैं उन बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को कहता हूँ, और मेरी कोई कंट्रोवर्सी किसी के साथ नहीं है, कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी बड़ा टैलेंट है बच्चों में, क्या सिंगर हो, क्या एक्टर हो, क्या मॉडल हो, क्या कॉमेडियन हो, क्या स्क्रिप्ट राइटर हो, बहुत टैलेंट है। आप यहाँ से भी टैलेंट देखें। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ। तो जिस बच्चे में टैलेंट है तो उसको आप प्लीज आगे तक जरूर लेके जाएं। जी जी जी, बहुत अच्छी संदेशा है भैया, दैट्स रियली नाइस। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आगे जाकर आप क्या करना चाहेंगे? अभी अभी तो आप मॉडलिंग, एक्टिंग और ये आप सोशल एक्टिविटीज में शामिल हैं अभी, तो आगे आपके बकेट लिस्ट में क्या क्या है? मैम देखो, अब वक्त कहाँ पे ले जाए, कहते वक्त का ये परिंदा पता नहीं किस मोड़ पे ले जाएगा, वो हमें खुद नहीं पता कि हमने क्या आगे करना है। मगर हाँ, लक्ष्य तो हमने अच्छा ही चुना हुआ है कि हम कुछ बड़े एक्टर बन के दिखाएं। मैं पैसे की तरफ तो भागता नहीं हूँ, क्योंकि पैसा भी जरूरी है। सभी बोलते हैं आजकल पैसा जरूरी है, और सही बात है, बिना पैसे के तो जिंदगी अधूरी है। तो लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि आज दिव्यांश ने जो भी किया अपनी मेहनत और लगन के साथ किया है। मैम कई बंदों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा जलो मत, रीस करो। मैंने एक ही चीज सीखी कि सबसे प्यार से रहना के लिए। और मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता था, फिर भी इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में बैठता हूँ, इतने बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठता हूँ, इतने बड़े बड़े मतलब कि अवार्ड्स लेता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ। जी 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 जी। दिव्यांश, अभी आपके माँ बाप के बारे में बताइए, क्या वो आपके साथ रहते हैं या गांव में रहते हैं? नहीं 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 मैम, गांव में तो हमारे जो, मैं एक मानसर विलेज का रहने वाला हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ही फैमिली सेटल्ड है। भाई मेरा चंडीगढ़ में है, उसका नाम सूर्यांश है। तो मेरा नाम दिव्यांश है, हम दोनों भाई हैं। मगर मेरे माँ बाप भी मेरे साथ ही हैं, मैं उनके साथ ही हूँ, दादी माँ भी मेरे साथ हैं। और बाकी आप सबका प्यार है, क्योंकि माँ बाप के बिना मैं अधूरा हूँ। स्वीट, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो कोई बहन नहीं है अभी? यू हैव टू ओनली अ ब्रदर, बहनें भी हैं? देखो, आप भी बहन हो हमारी। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि घर में ही बहन हो तो वो बहन है, बाहर भी बहनें हैं हमारी काफी ज्यादा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी बच्चे, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बच्चे कह के ही बात करता हूँ, बहन कह के ही बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, वो मेरी बाजू हैं। क्योंकि मतलब कि अगर वो नहीं होंगे तो मैं नहीं हूँ। जी जी जी, दैट्स रियली वेरी नाइस। आप बातें भी बहुत अच्छे करते हैं, मीठे मीठे बातें करते हैं और फैक्चुअल बात करते हैं। क्या आपको कभी स्कूल्स कॉलेजेस में ऐसा मंच पर कहीं बुलाया है बात करने के लिए? क्योंकि आप, आई हैव सीन द एक्टिंग एंड द मॉडलिंग पार्ट एंड योर अदर सोशल एक्टिविटीज। आज मुझे मैम पता चला आप एक अच्छे बात करने में, अ गुड स्पीकर, यू आर एन एक्सीलेंट स्पीकर एज वेल। जी जी, थैंक यू सो मच। मैम मुझे काफी जगह पे स्कूलों में भी बुलाया जाता था। एज ए मैं कुछ हमारी टीम थी जेडी इवेंट्स के नाम से, मैं वहां पे एज ए एंकर भी अपने आप को मैंने रिप्रेजेंट किया है। एक्टर तो बाद में है, एंकर, क्योंकि मेरी आदत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो छोटे छोटे कार, छोटे छोटे करते 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 मैं आगे तक आया हूँ। तो इसलिए कि मैं डाउन टू अर्थ रहना पसंद करता हूँ। और हाँ, ये स्पीकर जो आप देख रहे हो मुझे बनाने वाले, ये मेरे भाई सन्निकांत चिप जी, अमित कपूर जी, और जो मेरा मेकअप वगैरह करते थे, जो मेरे सारे थे, इरफान चौधरी जी, सनी जी, एमजे सनी जी, बहुत ही मतलब कि मेरे सारे, मतलब कि सभी मुझे बहुत प्यार देते थे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक, कहते हैं ना कि
मैं बहुत ही अभी छोटा हूँ, और बड़े बड़े कलाकार हैं मेरे से ज्यादा, मैं अपने आप को फिर भी डाउन टू अर्थ ही मानता हूँ। जी जी, दैट्स रियली नाइस। जी। अभी आप कभी कभी जम्मू कश्मीर छोड़ के कोई दूसरा शहर जाना, जैसे दूसरे स्टेट्स में जाना है, वहां पर एक्टिंग करना या मॉडलिंग असाइनमेंट्स अगर बुलाते हैं आप जाते हैं, या सिर्फ अपनी जम्मू कश्मीर के जोन में ही रहते हैं? आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये मेरे दिल्ली को में आप गए थे, हाँ। दिल्ली में मिला हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मुंबई का है। और हमारे जो शेख शकील जी हैं, हैदर जी, उन्होंने मेरे को बॉलीवुड के नाम से भी नवाजा हुआ है। मैं इस चीज को भी बड़ा मानता हूँ कि आप देख सकते हैं, मैम, एक छोटी सी फैमिली का बच्चा आगे तक जाएगा तो कितनी लोगों को खुशी मिलती है। और मेरा हमेशा यही रहता है कि यार, कोई भी हो मैम, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, जब वो हो, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, मैंने तो यही सीखा जी जी जी, है। दैट्स जी। रियली नाइस। नो, अभी आप एक एक्टर हैं, तो आप अपने लाइफ में कौन सी एक्टर को मानते हैं? कौन से आपके रोल मॉडल हैं? मैम, रोल मॉडल देखो, ये नहीं बोलता मैं। रोल मॉडल आप अगर बोलोगे कि ये चीज है, मैं किसी को देख के किसी की कॉपी नहीं करता हूँ। मैं एक अपना आपको अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ कि मेरे जैसे भी कोई, मतलब कि मैं ये वो वाली मैं नहीं है, ईगो नहीं है। मतलब कि एक अपना नाम क्रिएट करना चाहता हूँ मैं। एक्टर तो सारे हैं अच्छे हैं, सलमान भाई भी अच्छे हैं, शाहरुख भाई भी अच्छे हैं। मतलब कि काफी ज्यादा लोग, मतलब कि इतने अच्छे हैं। मतलब कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो रोल मॉडल है, जो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारे लिए जो मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद है, वो हमारे ऋतिक रोशन जी हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप ऋतिक रोशन के फैन हैं? जी 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 जी। मैं भी ऋतिक रोशन के फैन। थैंक यू सो मच। यस, दैट्स रियली नाइस टू नो कि भाई समबडी इज शेयरिंग द सेम थिंग। मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं और उनके डांस मूवमेंट्स अच्छे लगते हैं। उसका फर्स्ट मूवी से लेके काइट्स, जो लेटेस्ट मूवी मैंने वो लास्ट मैंने देखा उसका। मूवी जो थी कोना प्यार है, मतलब मैं बचपन में मैं इतनी देखता रहता था कि मैं, आई हैव नो वर्ड्स ऋतिक सर के लिए, कि मतलब कि इतनी अच्छी मूवी वो करते हैं, मतलब कि एक रियल एक्टर। यस, अगर वो देख रहे होंगे वीडियो मेरी, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो रियल हीरो है। जी जी जी, दैट्स रियली नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट दिव्यांश सर, थैंक यू वेरी मच। दिव्यांश सर, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, कभी कभी हम ये भी सुना है, ये होता है इंडस्ट्री में, जी कभी कभी रोल देते हैं फिर जी उसके बाद में किसी और को दे देते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज और हीरोइंस की मैंने कहानियां पढ़े, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, लाइक आई हैव रेड इन बुक्स एंड ऑनलाइन एज वेल। कभी ये रोल किसी को देते हैं, नेक्स्ट डे किसी और को दे देते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है उनको। तो थोड़े लोग सफर होते हैं अंदर, फिर बाद में कहते हैं कि मैंने इस सफर से गुजरा है रिजेक्शन का, मुझे बिना बोले किसी और को ले लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में? रेडी रहना हम लोग, जो भी मुश्किल सामने आए तो रेडी ही रहना है। जी जी। नहीं मैम, ऐसा मेरे साथ तो हुआ नहीं है, हाँ। बट एक बार ही हुआ था, क्योंकि वो एक्ट जब, मतलब कि बहुत ही टफ एक्ट था, क्योंकि मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं था। लेकिन जब मेरे को उसमें बोला गया था कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वो नशा है बुरा का ही एक सीन था, वो डायरेक्टर साहब ने मेरे को करवाया था। तो मैं स्मोकर तो हूं नहीं इतना बड़ा जो ऐसे कर सकता हूँ। उसमें वो ऐसे था कि चिट्टे का सीन दिखाया गया था, वो मेरे से हुआ नहीं था। तो मैंने उसके लिए क्षमा ली थी, क्योंकि देखो, है तो रोल ही था, लेकिन मेरे से नहीं हुआ था। अब तो जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने चेंज कर दिया था। एक बार मेरे साथ भी हादसा हुआ ही ऐसा। लेकिन मुझे फील हुआ था गिल्ट, मतलब कि अंदर से गिल्ट हो गया था कि यार, ये मैं ही मेन लीड में मैं ही था, लेकिन वो रोल किसी और को कर दिया था। लेकिन चलो, मेरी वजह से किसी दूसरे कलाकार का भी नाम हुआ, तो मेरे को इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। ब्रिलियंट, आई लव दिस आंसर, दैट्स रियली नाइस। अगर मुझे, मैं नहीं कर पाया किसी और को तो वो मौका मिला, ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं। दैट्स रियली नाइस, जी यू हैव अ ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस। अभी थैंक मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये मॉडलिंग क्या होता है, कौन ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन मॉडलिंग? मैम, मॉडलिंग के लिए देखो, लोग कहते हैं कि बॉडी होनी चाहिए अच्छी, ये मतलब कि हाइट होनी चाहिए अच्छी। ऐसा होता है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन मैंने अपने आप को खुद का एक ब्रांड बनाया, खुद का नाम दिया दिव्यांश बाबा, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में आया है। जम्मू कश्मीर में तो काफी ज्यादा प्यार मिला इस नाम से। ठीक है, ये चीज है। लेकिन छोटी हाइट वाले भी मॉडल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मोटे होते हैं वो भी मॉडल कर सकते हैं, जिनको
अभी आपको बता देता हूँ कि मैं अभी मेरे को एक प्राइड इंडिया इवेंट्स का हुआ था शो, जिसमें हमारे जूनियर बी प्राक जी आए थे, दमनप्रीत जी आए थे, और उसके बाद हनी भाई आए थे, हनी सिंह जी जो जूनियर थे वो भी आए थे, और बिग बॉस में आए थे आशुतोष जी, उनके साथ भी मैं रहा, वरुण जोशी जी, जो कि मतलब कि मैम वो लगते ही नहीं है, मतलब कि जब उन्होंने मेरे से बात की ना, उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा लगा कि यार जैसे हम पता नहीं कि भाई हैं, मतलब कि एज ए एक्टर वाला उन्होंने मुझे फील ही नहीं दिया, मतलब कि इतना प्यार दिया उन्होंने, कहा दिव्यांश बहुत ही अच्छा वो चीज की। मैंने उनके लिए भी एक शेयर अर्ज किया था, जब मैंने बोला था वरुण जोशी के लिए, वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उन्होंने बड़ी बात बोली थी। मैंने बोला था, दिल टूटा तो आवाज आई, दिल टूटा तो आवाज आई, हमने भी बोला इस पापी दिल में क्या होगा, जब पानी से धो के देखा तो वरुण जोशी जी की तस्वीर मेरे दिल में नजर आई। नाइस, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू। दैट्स रियली नाइस। जी, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, जब ये शूटिंग होती है ना, जी। तो फिल्म शूटिंग जब होती है तो जी। वो बहुत कठिन होती है। जो स्क्रीन पे दिखती है वो कुछ अलग ही है, जब शूटिंग होती है इट्स वेरी वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। तो आपको खूब ऐसा आ- कोई डिफिकल्ट सीन या सिचुएशन करना पड़ा जहां पर डेंजरस था आपका लाइफ के लिए, ऐसा कुछ हानिकारक था को सिचुएशन? एक हमारे डायरेक्टर थे सोनू तनेजा जी, मैम वो सीन था हमारा, आंचल जी ने ये सॉन्ग गाया था। तो उसमें क्या था कि जब हम स्टार्टिंग मेरा चल रहा था, तो एक ना छत से स्टंट करना था, छत से नीचे गिरना था, तो नीचे हमने गद्दा वगैरह वगैरह सब बिछाया हुआ था। तो जब उसमें था कि गरीबों, वो स्टोरी जो हमने बनाई थी, एक गरीब लड़का होता है और अमीर घर की लड़की होती है, एक ट्रू लव स्टोरी पे मेरा सॉन्ग बेस्ड था ये, आप देख सकते हैं ऐसे भी। तो उसमें था कि दिव्यांश तेरी किस्मत ही माड़ी है, दिव्यांश तेरी यू नो कि दिव्यांश तेरी किस्मत लक ही मतलब कि बहुत ही गंदा है। तो जो मतलब कि जिस लड़की के ऊपर हमने ये स्टोरी की थी, वो चुवाले वाली ने तेरी जिंदगी उजाड़ी, एक गाँव है, एक ये किसी दोस्त की कहानी थी, वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि वो ट्रू लव स्टोरी थी। मतलब कि बहुत ही अच्छा था। जब मैंने वो स्टंट किया मैम, आप बिलीव करेंगे कि मुझे गद्दे पे पड़ना था, बैड लक ऐसा हुआ कि गद्दा वहां से निकल गया साइड से, आप जान सकते हैं कि मार्बल पे स्किट हो जाता है, तो वो जैसे ही स्किप हुआ तो मेरा पाँव इंजरी हो गया, तो फिर मुझे शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी, बहुत ही डिफिकल्टीज, ये डिफिकल्टी मेरे लिए बहुत बुरी थी। और लेकिन फिर भी मैंने पाँव टूटे टूटे भी अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की। फिर भी डायरेक्टर ने थोड़ा तरस लिया मेरे पे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक दिन का रेस्ट ले ले। मगर मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मेहनत, आपका भी टाइम नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि कलाकार के लिए तालियां ही सबसे बड़ी बात होती है। आप सबका जितने श्रोते हमें देखते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। और मैंने उनको बोला था कि जब तक दिव्यांश की सांसें चलेंगी, आपके साथ ही चलेगा। जी जी जी, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंसिडेंट भी आपने शेयर किया है, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। अभी दिव्यांश, हम ये जानना चाहेंगे, आगे जाकर आप क्या बनना चाहोगे? अभी ऑलरेडी इतना तो सब कुछ में ऑलरेडी तो आप आ चुके हैं, आगे जाकर, आगे जाकर का मतलब, मेरा मतलब ये है, जब आप 50 ईयर्स के हो जाएंगे, 50-60 ईयर्स के बाद में रिटायरमेंट हो जाती है सबका, तब तो आप रिटायरमेंट के कुछ सपने देखे हैं कि मेरा एक घर हो और ऐसे सब कुछ हो, ऐसा कुछ प्लान करा है आपने? मैम देखो, हमने आपको एक ही बात बता दी कि हम मुसाफिर हैं, पता नहीं क्या होगा कहाँ होगा। 50 ईयर्स हो, आपने बड़े ज्यादा बोल दिए कि हमें ये पता नहीं होता, क्योंकि ऐसे हेटर होते हैं कुछ अपने ही मैम, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बी पॉजिटिव, मैंने आपको एक ही बात बोली कि जलो मत रीस करो। तो मैम कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि मुझे घर बार भी अपना त्यागना पड़ा था, कि कुछ ऐसा मतलब कि कुछ रिलेटिव्स के मतलब कि थ्रेट्स थी, कुछ बाहर के थ्रेट्स थे, तो लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, जो मेरी मंजिल थी मैं उस मंजिल तक जरूर पहुंचा। किस तरह के थ्रेड्स आप बात कर रहे हैं, कि क्या हुआ था, इफ यू कैन शेयर? मैम ये थ्रेट्स ऐसे थे कि जब कोई कलाकार आगे बढ़ता ना, छोटी सी एक स्टेज पे जब आता है ना, तो फिर वो आगे आगे बढ़ता जाता है, तो जो पुराने हेटर्स होते हैं वो उसको नीचे गिराने की बात करते हैं। मैं तो चलो इतना बड़ा कलाकार तो अपने आप को मानता नहीं, मैं कलाकार हूँ नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ, तो सीख रहा ही हूँ और सीखते आऊंगा। आपसे भी मुझे आज सीखने को मिला है, तो मैं छोटों से भी सीख लेता हूँ और बड़ों से भी लेता हूँ और बूढ़ों से भी लेता हूँ।
तभी तो आज आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैम हमेशा कुछ अपने ही गिराते हैं। तो अपनों से गिर मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी आपका एक्टर हूँ। जब का मुझे सपोर्ट करो, मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जी जी, ये समझ सकती हूँ मैं। कभी कभी अपने ही हमको गिरा देते हैं, ये मैं मानती हूँ मैं। बाहर लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे खुद के जो नजदीक वाले हैं, दोस्त है या घर वाले हैं या अपने रिश्तेदार, वो ही हमें नीचे देखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू सी अस राइज। आई एग्री ऑन दिस, लाइक दैट्स करेक्ट। एंड आई होप यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। बहुत सारे सपोर्ट आपको मिलना है आपके काम के लिए। आपके बातों का फैन हूं मैं। जैसे आप बात करते हैं ना, जिस अंदाज से आप बात करते हैं, वो मैं फैन बन चुकी हूँ अभी। दैट्स रियली सो नाइस कि इस कम उम्र में इतनी अच्छी बातें बोलना, इतना अच्छा सा शेयर करना। दैट्स रियली ग्रेट एंड वंडरफुल। दैट्स ग्रेट। दिव्यांश सर, अभी हम ये पूछना चाहेंगे पकवान के बारे में। अभी जब आप सेट्स पे जाते हैं, तो किस तरह का जी, खाना खाते हैं? वहां पर ही कुछ दे देते हैं या घर से लेके जाते हैं या वहां पर हेल्प करते हैं कुकिंग में? आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम सेट्स पे जाते हैं, मैं आपको देखो, मैं जो भी बात बोलूंगा मैं सीधे सच ही बोलता हूँ, और सच के सिवा मेरे को झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है ऐसी। जब हम सेट पे जाते हैं मैम, आप बिलीव करोगे कि यहाँ से मैं कभी पठानकोट जाना पड़ता है, कभी पंजाब जाना पड़ता है, जहाँ कहीं पे भी मुझे टाइम मिलता है, 5 मिनट्स भी मेरे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम समोसे वगैरह खा के गुजारा कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं। क्योंकि अभी हम इतने बड़े स्टार तो है नहीं कि हमें या वेटनरी वैन वगैरह आएंगी या आएंगी, लेकिन फिर भी मेरे को वो पंजाब में बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं लोग सभी। अभी दीनानगर में मेला हुआ था साबी सागर जी का, बहुत ही मान सम्मान मिला मुझे वहां पे। मतलब खाना भी अच्छा आता है, मतलब कि मेरे को ऐसा ट्रीट करते हैं कि आई एम सेलिब्रिटी, और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तो कुछ अपनों ने मेरे को बड़ा ही उठाया, जैसे कि मेरा एक दोस्त ही है जिगरी, उसका नाम प्रिंस पोंटी है, तूफान चौधरी है। तो बड़े ही मेरे सपोर्टर हैं, मेरा बहुत ही प्यार देते हैं मुझे। अमित कपूर जी मेरे भाई, फिर सनीकांत चिप जी, मैंने आपको बताया तरुण उपल जी, तरुण शर्मा जी नटमंच के प्रेसिडेंट हैं, सभी मतलब कि मेरे साथ, मतलब कि मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने यारियां कमाई और इज्जत कमाई और अपना काम कमाया। वैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अच्छे लोग जो हमारी जिंदगी में आते हैं वो बड़ी मुश्किल से आते हैं, और आप उनको सब आदर करते हैं और वो भी आपका आदर करते हैं, एंड वाइस वर्सा। पंजाबी में शायरी आपके लिए अर्ज करने लगा हूँ। कहंदे ना, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਦਾ ਪੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ पी ਲਾਵਾਂਗੇ। वाह, ओह माय गॉड, ओके, दैट्स रियली नाइस। ये हमारे उस्ताद श्री विक्की बादशाह जी का गाना था। तो उन्हीं का ये, मतलब कि उन्होंने ही ये लाइन कुछ कही थी, तो वही मैंने आपको आज जिक्र की है। जी जी जी। अभी आपके माँ बाप जो है, जी। या अभी उनका क्या कहना है? अभी दिव्यांश, आप ये सब कर रहे हैं, आप तो अभी शादी कर लो, सेटल हो जाओ। क्योंकि आप सिर्फ समाज सेवा, अभी देख समाज सेवा कर रहे हैं, और या एक्टिंग में, मॉडलिंग में वो जो काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का प्रेशर भी थोड़ा रहता है कि दिव्यांश अभी सेटल हो जाओ, ऐसा कुछ। जी मैं आपको बात बता देता हूँ कि माँ बाप तो हमेशा बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी बीच में उनसे चीट कर लेते हैं, क्योंकि मम्मा अभी नहीं, रुक जाओ, पापा अभी नहीं, रुक जाओ, अभी मुझे कुछ बनना है। लेकिन वो मतलब कि मेरे लिए अभी भी बोल रहे हैं कि यार शादी कर, शादी कर, इस काम में क्या रखा है, इस काम में क्या रखा है। लेकिन मेरी जो लगन है, मेरा जो मतलब कि जो चीज मैं सोचने आया हूँ कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, जो लक्ष्य मेरा है, क्या पता मैं पॉलिटिशियन में चल जाऊं, क्या पता मैं एक्टर में चल जाऊं, मतलब कि मंजिल कहीं पे भी ले जाए, कहाँ पे, मतलब कि कोई पता नहीं है, कि मोड़ कहीं पे भी ले सकता है, कोई पता नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको सही बात बता दूं मैम कि मैं एक मेरे जो जैसा मैं सुधीर कुमार खजूरिया जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के, वो मेरे को बड़ी सपोर्ट करते हैं, और हमेशा मैं उन्हीं के साथ भी चलता हूँ। और मेरे एक मतलब कि अभी मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊं, मैंने ये ठानी हुई है। क्या वो बच्चों के लिए करूं, क्या वो बेटिया फाउंडेशन के लिए करूं, क्या वो मैं किसी, मैं मेरी तो कोशिश ये रहती है मैम, आप बिलीव करोगे कि मेरा अभी 24 को बर्थडे है। तो
अभी की आपको क्या बता दूं कि 24 को बर्थडे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फूफा जी की डेथ हो गई है, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बॉम्बे से, दिल्ली से स्टेटस केक्स वगैरह कटिंग्स होती हैं और मुझे वीडियोस मेंशन होती हैं। आप मेरे मॉडल दिव्यांश बाबा इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जा सकते हैं। मतलब इतना प्यार देते हैं लोग, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि यार मैंने क्या, मतलब कि अपने आप को मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार मैं बहुत बड़ा ही एक स्टार बन चुका हूँ, और मैं स्टार बन चुका हूँ। इसमें ये बात नहीं है स्टार कौन बनाता है, आप जैसी जनता बनाती है, आप जैसे भाई बनाते हैं, बहन बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। कुछ हेटर्स के लिए मेरा दिल से लव यू, तो वो भी खुश रहें। Wow, that's really nice. That's really nice. Even you love your haters. Okay, that's great. दिव्यांश, अभी आपके भैया के बारे में बताइए। क्या आप छोटे भैया हैं और वो बड़े भैया है, या दोनों जुड़े मैं हुए हैं? व्हाट इज इट? मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं। वो इस टाइम चंडीगढ़ में हैं, तो वो जॉब करते हैं। तो मैं तो बड़ा ही हूँ, क्योंकि अब घर वाले मेरे पीछे ही पड़े हैं कि भैया मैरिज कर ले, अब टाइम आ गया है। हर माँ बाप का सपना होता है कि अच्छे से शादी हो, अच्छे परिवार बसे, खुशी खुशी रहें सब। लेकिन अब मेरा ही नंबर है। हम ये जानना चाहेंगे, आप दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में किस तरह का संबंध है? आई मीन, लड़ाई झगड़ा झगड़ा होती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, या बहुत अच्छे तरीके से आप वो जेल होते हैं? वो कौन सा घर है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता? जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा वहाँ प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? प्यार भी बढ़ना चाहिए। तो आपको पता कि हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो घरेलू नुस्खे हैं। माँ बेटे में भी होते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है भाई। हमारी कोई ज्यादा बड़ी झगड़ा नहीं होता है कभी ऐसे ही कि कुछ ये खा गया पहले या ये ले गया पहले, यही चीज है। बाकी प्यार मोहब्बत हमारा दिल से है। वी आर वन, हम एक। Wow, I like this. We are one. That's really nice. What do you love in your brother? मैम मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि वो किस भी बात मैं। के लिए आप उसको उतना सम्मान और प्यार देते हैं? किस बात के लिए? What is the reason? मैम वो देखिए, चलो हम तो इतना मतलब कि ज्यादा मिले नहीं ही रहे नहीं, क्योंकि हम ज्यादा बाहर ही रहते थे। कभी दिल्ली में, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन फिर भी मैं उनको इस चीज से प्यार देता हूँ कि मैम वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा नाम उसने कमाया। मतलब कि अपने दम पे उन्होंने बोला था कि मैं बाइक लूंगा, R15। तब नई बाइक आई थी, बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसी चीज का मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आई लव यू माई ब्रदर सूर्यांश। How sweet. That's really nice. अभी दिव्यांश, खुद में आपको क्या अच्छा लगता है? What do you love about your own self? मैंने कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं है। मैंने हमेशा सोचा तो दुनिया के लिए सोचा, जनता के लिए सोचा, बेटियों के लिए सोचा। दिव्यांश बाबा खुद के लिए कुछ नहीं सोचता है। अगर आप मुझे बोलोगे कि दो निवाले में भी रात काटनी, मैं वो भी काटूंगा। लेकिन मेरी जेब में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी को भूखा नहीं जाने देता हूँ। मेरे पास हमेशा 24 आवर्स मेरा अपना बिजनेस है कैटरिंग का, वो भी चलता रहता है। तो वहां से ही मेरा मतलब कि सर्कल जो है ये चलता है। बाकी आप ऐसे बोलो कि मॉडलिंग से क्षेत्र में जो दिव्यांग जो भी बोलता है, मैं सच बोलता हूँ, मॉडलिंग के क्षेत्र में घर नहीं चलता है। लेकिन ये मेरा एक शौक है कि मैं इस शौक को अच्छे तक लेके जाऊं। जी जी, दैट्स रियली नाइस। ये अच्छी बात भी आपने समझाया कि भाई मॉडलिंग से घर नहीं चलता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस विद इट। आप केटरिंग के बारे में बताया अभी हमको। ये क्या है? केटरिंग के बिजनेस आप चलाते हैं, या किसी और के साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप में चलाते हैं? ये मेरा खुद का बिजनेस है। एक मेरे भाई हैं जो मैनेजर हैं, अश्वनी नाम है उनका। और सुखदेव सिंह मनास हैं, चाचू जी हैं। वही सारा हैंडल करते हैं, और मैं भी थोड़ी थोड़ी मतलब कि सीख लेता रहता हूँ। और लेकिन जो मैं आपको बता दूं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं खुद पेशे से एक ड्राइविंग भी करता हूँ। या दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। तो ये हम जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के सबसे खास खाना क्या है? हमारे कभी भी आए हैं आप, राजमा चावल यहाँ के बहुत ही फेवरेट हैं। अगर आप बोलो, राजमा चावल? जी, राजमा राइस हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस हैं। और डोगरी खाना जैसे आप अगर देखोगे, तो वो राजमा चावल और तिमरू की चटनी। एक गाना भी आया था अभी, गजनी गुरु ने गाया था, वो रैप भी था वो। कुड़िए मक्के दी रोटी ते सरेआं दा साग, आ साडे जम्मू कश्मीर। ये बहुत ही बड़ी बात थी कि जम्मू कश्मीर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपने सॉन्ग में।
फिलहाल अभी वहां पर बहुत ठंड होगी, क्योंकि ये ठंड काल है वहां पर। आपको पता है, जो मेहनत करता ना उसको ठंड नहीं लगती, ठंड भी उससे भागती है। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों की जो कभी हार नहीं होती है। और ठंड क्या है? अब आप बोलोगे ठंड ठंड, जो रहते ही बेचारे ऐसे बड़े प्रोटोकॉल्स में हैं, वीआईपी हैं, तो उनको तो ठंड लगेगी लगेगी। हमें ठंड का नहीं पता, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता। जी जी। दिव्यांश भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आप जैसे बात कर रहे हो, जैसे आप शेयर कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में। बहुत बहुत देख चुके हैं, बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा आपको। तो आप बड़े गहराई से बात कर रहे हैं। तो सभी लोग ऐसे आसानी से नहीं बात कर पाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि लाइफ में दिव्यांश ने बहुत कुछ देखा मैम। यहाँ पे अब मैं क्या बोलूँ कि आज इतना बड़ा इंसिडेंट है, फिर भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपको पता है कि मेरे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी। जो मैं कमिटमेंट करता हूँ वो मैं पूरी करके दिखाता हूँ। जी जी जी। हम आशा करते हैं आप आगे जाकर बड़े स्टार बने, और हम सभी को एंटरटेन करें आप, और बिटिया फाउंडेशन को आगे ले जाए। सभी आपके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, और सब लोग नए फैंस भी आपको और ज्यादा मिलना है, और आपका काम भी अच्छी तरीके से आगे जाना है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड मिस्टर दिव्यांश। अभी अभी मेरे को मैं आपको बता देता हूँ, अभी नितिन मेहता जी हैं, उनसे भी अवार्ड मिल चुका है। अमीषा पटेल जी से भी अवार्ड मिल चुका है। करण मेहरा जी से भी अवार्ड मिल चुका है। सार्थक चौधरी से भी मिल चुका है। और काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज से मैं अवार्ड ले चुका हूँ। और इसमें मैं आपको बात बता देता हूँ कि अभी मेरे को संदीप चौधरी जी हैं एंकर, जिन्होंने शो करवाया था, संजीव गुप्ता जी ने, उन्होंने भी मेरे को सम्मानित किया था। और काफी ज्यादा मैं फर्स्ट टाइम ही मैं लोगों से मिला, लेकिन बहुत ही प्यार दिया लोगों ने। अशोक कुमार जी हैं कानपुर से, तो बरखा जी हैं, नीलम जी हैं, शबनम जी हैं, संदीप चौधरी जी हैं, दीपलाल भारद्वाज जी हैं, पूजन भंडारी जी हैं, बाबा त्रिलोकनाथ जी हैं। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी टीम एक बहुत सक्षम टीम है। सारे मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। तो दीपाली जी हैं, संगीता जी हैं, सबका मतलब कि प्यार है मेरे साथ। सचिन चतुर्वेदी जी हैं, सबका मतलब कि टोटली मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे अपने हैं। माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम रह भी गया हो, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन सबसे मैं दिल से प्यार करता हूँ, और आप लोगों ने ही मुझे बनाया है। हाँ, खास मेरा जो मेरी सपोर्ट है, वो मेरा साहिल अहमद चंदा है, मेरा ब्रदर है। बहुत सपोर्ट रखते हैं मुझे। प्राइड इंडिया के ओमकार डिगरा जी हैं मैम। मतलब कि प्रिंस पोंटी हैं। मतलब कि मेरे साथ काफी ज्यादा लोग मतलब कि मेरे को प्यार देते हैं, और मैं उन्हीं के प्यार से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ देयर नेम। सभी को याद करके आपके सभी का नाम शेयर किया है यहाँ पर। दैट्स रियली वेरी नाइस। We wish you all the best in all your endeavors. My dear friends, do share this video with the right kind of people. And if you love what Divyansh is doing today, if you'd like to support him with his work in acting, modeling, and of course with Bitia Foundation, if you'd love to contribute in any way to the work that he does, you're most welcome to do that. But don't forget to share this video with the right kind of people, because we love to support people and see them rise. And if family members don't stand with you, you have lots of strangers in the world who will stand with you and will make you rise up and shine. But of course, you have to trust the right kind of people in your lives, be it family, friends, or strangers. We'd like to end the session now. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Before we end, we request our celebrity and guests to share a little message with all of us and then end the session. आपका कोई छोटा सा संदेशा है सभी के लिए तो आप शेयर कर सकते हैं, उसके बाद में समाप्त करेंगे सेशन। जी, मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी कलाकार में कोई भी टैलेंट है, उसको सपोर्ट करो। और जो मेरी लड़ाई है, नशे को दूर करो। इस नशे को खत्म करना है और अपने देश को बचाना है। और मोदी जी की एक ही बात है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो यही कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और एक लास्ट बात ये कहूंगा कि हमेशा इंसान को प्यार से रहना चाहिए। पता नहीं कि एक बात ये कहूंगा कि दम दा भरोसा है, दम आवे ना आवे कोई पता नहीं है, सबने चले जाना है। एक दिन तो हमने सबने जाना ही जाना है। फिर किस लिए अकड़ करनी, किस लिए ये सब हेटरपन करना। प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और फौजी भाइयों के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरी तरफ से 26 जनवरी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। जय डुगर, जय डोगरा।
That's really nice. Thank you so much for that wonderful message. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. My dear friends, with this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. Thank you so much for being a part of our journey. Do share this video with the right kind of people and encourage the talent that is around you, especially the youngsters or the middle-aged and senior citizens who have talent and they are sharing the talent with you. Do encourage them on their journey when they are trying to focus on their acting skills, modeling skills, or maybe their social activities. Let's stand with one another and make the world a beautiful place. We grow together. And let's grow together with lots of love, peace, joy, and happiness. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talk. Stay connected and stay blessed. Thank you Thank you, very Bhaiya.